What is your one line mantra for life and business? तो कौन से ईयर में आपने बिजनेस स्टार्ट किया and how old you were that time? I must be around 45, 45 that Okay, you time. started your company at the age of 45. हाँ. So मल कंस्ट्रक्शन आपने जीरो से शुरू किया था, तो कैसे ये जर्नी कैसा शुरू रहा? What is your first salary? Rupees 500. So it's a very long time partnership business. मतलब बहुत मुश्किल रहता है कि लंबे टाइम तक पार्टनरशिप रख के कोई काम करे. कभी प्रॉब्लम नहीं आया, कभी क्लैशेस नहीं हुए आपके बीच? हुई. So what is the definition of leadership according to you? वेलकम टू अल्फा टॉक. आई एम रुचि, योर होस्ट एंड गाइड, जहां पे हम बात करते हैं पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप. आज हम बात करेंगे अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप. लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन, कॉम्प्रोमाइज, पैशन एंड डिसिप्लिन. क्योंकि बहुत लोग पार्टनरशिप फार्म बनाते हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. बट आज हमारे जो गेस्ट है, he is the biggest example of partnership and successful firm. He is none other than Mr. Daudayal Radhakrishnan Mal, who is a founder member and director of Mal Construction, Nagpur. Welcome, sir. Welcome to our channel. Thank you very much. So you born in 1945. Yeah. Right. तो उस टाइम पे सिनेरियो कैसा था आज से? कितना डिफरेंट था? When I born 1945, Right. so that time I was not knowing what was a scenario. Right. But as I grown up and as I started my education, then definitely I can tell you that what type of scenario was there in India. Like when I passed my matriculate, that is 11th standard, and when I gone to college, engineering college, when I took admission, I find lot of difference in that time. That time opportunities were very less. Right. Opportunities were very less for the educated students. Only government jobs were there. Private companies, they were in a very small way, not like today. Right. They are very big corporates. There were people, they were working. So opportunities were very less. And now of course that is different. So this is what scenario I have seen. The opportunities were very less. So 60s and 70s के टाइम पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम था, क्योंकि तब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था, तो इट वाज वेरी क्लोज टू इंडिपेंडेंस. राइट. तो आज से कंपटीशन भी कम होगा उस टाइम पे. या कंपटीशन कम था. दूसरा था ऐसा ऐसे टेक्निकल एजुकेशंस. राइट. टेक्निकल एजुकेशन के लिए देयर वाज नो कॉलेजेस. ओके. There was no only government institution, government colleges were there. Today private, after that lot of private colleges are there. So for technical education it was very difficult to get admission. True. Let us say Nagpur, yeah, in Maharashtra, there were only 2 or 3 places. Okay. The government colleges were there. अच्छा. Nagpur, there was a regional college, VRC, Okay. where students of other state, they can also take admission. Oh. Like that, in MP, Bhopal, Indore, there were some colleges. So they were the regional colleges. So students were having less opportunity to get the admissions and all these things. That scenario was there that time. Okay. So who inspired you most in your childhood or in your student life? Ruchi, let me tell you, I am basically from agriculture, a farmer come business community. Okay. Staying in a small place, small village. And when I grown up, when I started understanding, that time business was practically
closed, maybe because of some reason. So our family started forming. They were farmers rather, and in a small village near Akot, which is in Akola district. Okay. And there we started. So in family, there was nobody to guide what to do and what and in future what to do and all these things, for me at least. And unfortunate part happened when I passed 7th class, then my father expired. Oh. So, and the financial conditions were not good that time. See, we were 5 brothers, but 2 brothers, elder brothers, were adopted by my close relatives. Okay. So we were 3 brothers, and 3, I was the youngest. And next 3 they were matriculate education they have taken, 1 or 2. And the elder brothers, they were all in business, so they have not taken much education. Right. So nobody was there to guide me. So first thing when I have passed 7th and my father expired, then it was a very difficult time for our family to how to get education for me. My eldest brother, who was adopted my grandfather's brother, Okay. and we were staying together that time. So he came. There were many other relatives. They discussed that there are certain relief society. They can give money for the education and all these things, that sort of thing. So my eldest brother, he has told nothing doing. He will first learn. He will take education. Then after that, my son will take education. Okay. So from 8th onward, till my engineering, my eldest brother has taken care of all financial requirements of my education. Oh. So he was really like a father to me. Father was not there, but he has taken. So that time, because nobody was having a much education, so whatever the decision for further studies and all these things, I have taken with my friends. I have gone to engineering college. Just 2 friends we discussed, क्या करना है, चलो यार engineering पढ़ेंगे. Because on that time 11th, after 11th, admission in engineering college was possible. So 11th में हमको अच्छे मार्क्स आ गए. तो बोले अभी क्या करना है, तो बोले चलो इंजीनियरिंग कॉलेज में चलेंगे. अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में चलेंगे तो देयर वाज ओनली नागपुर, एंड नागपुर वाज डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन. तो वी ट्राइड भोपाल रीजनल कॉलेज. अब भोपाल वी आर नॉट नोइंग एनीबॉडी देयर. तो हम ही अपने आप चले गए वहाँ पे. हम ही अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी किया. वी गॉट द एडमिशन एंड वी स्टार्टेड आवर एजुकेशन देयर. लाइक दैट I finished my education. Okay. So I must say कि इंस्पायरेशन कोई नहीं था, पर मेरे ब्रदर का बहुत बड़ा, एल्डेस्ट ब्रदर का बहुत बड़ा, बड़े भाई सबसे बड़े इंस्पिरेशन. Of course today is not there, okay, expired, but because of him only I could get the education. And whatever I am here because of him. Okay, that's very nice. So looking back, education उस जमाने में कितना डिफरेंट था आज से? बहुत डिफरेंस था. आई टेल यू दैट टाइम, एक तो जैसे मैंने बताया आपको, टेक्निकल एजुकेशन के लिए देयर नॉट मच ऑफ द कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस नहीं थे. एंड दैट टाइम द एजुकेशन वाज बेसिकली थ्योरेटिकल एंड रिजिड, एंड देयर वाज नो टेक्निकल एडवांसमेंट और लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल दिस थिंग्स. So it was basically theoretical based, and we have to study, the students, they have to study very hard to get a good marks. Nowadays the education is very objective, then it's very club with the technical advances, and there is a lot of flexibility there, and it is more or less
marks oriented. बिल्कुल. That time it was not there. So that was the difference. So when we see sometime that we used to to get a 60% marks to get in first class, we have to do much of effort. And now 60% तो ऐसे ही आ जाता है. बिल्कुल. So that was the difference. आपने अभी कहा कि एजुकेशन उस टाइम पे एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि एडमिशन के बाद भी आपने जो स्ट्रगल देखा है ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ? Yes, स्ट्रगल तो रहा. हाँ. बेसिकली दो टाइप का स्ट्रगल रहा. एक तो मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे करना पड़ता था. तो आई यूज्ड टू गेट मनी बाय मनी ऑर्डर दैट टाइम. राइट. दैट टाइम ओनली मनी ऑर्डर वाज पॉसिबल. तो मुझे मेरा जो एक्सपेंस का था दैट आई यूज्ड टू मैनेज, एंड विद इन अ लिमिट आई हैव टू स्पेंड माय एजुकेशन फीस, all these things. That was one part. And second, what happened, since we studied in village and in Marathi medium, so English was little difficult subject for me. So what has happened, see, we got a good mark, so I got a stipend also. But first year I could not clear the English paper. Okay. So there was 80 KT. And I got admission in second year, subject to I must clear. That in second year also I could not clear. So that was a tough time for me. So I thought that whether I will able to continue or not. But there was one more chance they were given for 80 KT. So third year I cleared the English, and then my stipend also started. Okay. So that was a tough time. But I tell you, we were very good in mathematics. Oh. English was the one problem, but we were very good in mathematics, science and all these things. Okay. When you got your first job? See, I cleared my mechanical engineering in 1967. So that time job opportunities were only in government, not in private. Right. And private is very difficult. So my first cousin, he was staying in Calcutta, and he was in a good position in Simplex Concrete Piles and Geo Muller and Company. They were construction company, environmental engineering company. So he called me then. So I had gone to Calcutta in search of the job. Right. So he said, you search the job and don't stay in house. You come to our office. And I used to sit in their mechanical workshop. So I used to sit there. And then immediately in 2-3 months' time, they wanted a mechanical engineer. The Geo Muller and Company, they were doing the environmental engineering jobs. Right. So they they advertised for 2 mechanical engineers. So I got an opportunity in that. So that's why I could get the job in that company, Geo Muller. But I studied in a mechanical, and that company, environmental engineering, is basically a civil engineering. And it is based on civil engineering subject. The environmental engineering is based on civil engineering subject and public health engineering subject, which I was not knowing. Okay. What is your first salary? Rupees 500. Okay. Rupees 500. And they have given me, what has happened after joining Geo Muller, they have posted me to Nasik. Okay. For their project. So there I was, my salary was 500, and they have given me bicycle. That appointment is still with me. Oh. A bicycle is given by the company. So 500 कौन से year में? 500 rupees, that is in 1968. Oh, money man. Okay. But I tell you, Okay. While doing the job, I must tell you one thing, that so many difficulties I have seen in the financial side initially while studying and all these things. So my motto was to study more subject, that particular
environmental subject, public health engineering subject, since I was a mechanical. So mechanical part was there, but to study that part, so I worked very hard to do that. कितने साल आपने जॉब किया? Job, you see, roughly 15 years. I joined in 67 Okay. and left in 83. So around 15 years I worked. Okay. And I got a appointment after that Nasik project. They have taken me in head office. Okay. The head office was in Calcutta, but they opened a big branch office in Delhi, so they shifted me to Delhi. In Delhi office I was 15 years. Okay. And one advantage I got, that first they have given me the drawing office, यानी where प्रोजेक्ट का जितना ड्राइंग बनता था उसको मुझे सुपरवाइज करना था और मुझे उनको जॉब देना था. तो वेरी बेसिक थिंग आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. Then they have given me to prepare very basic things I have gone, and I learned lot of things out of that. Okay. And when I left, that time I was not a very senior man, but I was very responsible man of the company, and people and the company's staff, they used to know that I am some close relative of owner. Okay. That was the stage. So why you left your job? Yeah. What happened, my brother and other family members, my brother was also in job that time, Simplex Concrete Piles. He left, and we decided, family, that I am also doing job, you are also doing job, my another elder brother was also doing job. So we thought, he said that now I can't move here and there, so I am leaving. So when he left, the company has told him that there is a परली बैजनाथ करके जगह है महाराष्ट्र में, बोले हम वहाँ आपको क्रशर लगाते थे, आप वहाँ जाइए बिजनेस करिए एंड हमको माल सप्लाई करिए. सो ही हैज़ गॉन एंड दे हैव डेवलप्ड बिजनेस ऑफ supplying material to civil construction like metal, sand, and whenever I used to go to stay with them during holidays, I have seen their financial growth and their financial status is definitely more than me. Okay. And see, we were in job, getting that time salary was not very big, but we were not behind the salary. We were workaholic type of people that time. Then I have seen after paying tax and all this thing, what I left, money. So that thing has come in mind. Okay. Then I used to tell my brother that you are developed so much, why not to start a construction company? True. So in our family, some business will develop. He says, I don't have technical man. If you want to come, you come. Rather, I will insist you come. So I took about 2 years to think, because I am a mechanical man going for the civil construction and developing. True. But then I thought this is the opportunity. Considering my age, if I start some business, then I must start right now. I took advice of my close friends and all these things. So of course I was at very good position in Geo Miller & Company. Right. And they never expected when I told that I want to leave and go to my place and start business. So they have taken 2 years to release me. So that was the one thing. When I seen a financial status, so I thought that पैसा तो आएगा अगर बिजनेस करेंगे. बिल्कुल. नौकरी करेंगे तो जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन में रहना हमेशा रह जाएगा. यानी मेरे बरोबरी के मालक के लड़के जो थे जियो मिलर में, वो मेरे बरोबरी के थे. अच्छा. मोरलेस. तो उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला देखिए आज की परिस्थिति वॉट एवर, मैं इंजीनियर हूँ, सब कुछ कहे, बट आई डोंट हैव अ फ्रिज इन माई हाउस. I cannot bring fruits and other things, keep it there and मेरे बच्चों को खिलाऊं करके. तो ये सारी चीज़ें उस टाइम जब देखा तो मैंने I took a decision, let us go for a business. Okay. So
जॉब से लेके बिजनेस स्विच किया आपने एंड यू स्टार्टेड मल कंस्ट्रक्शन। या वो भी बहुत ये बिजनेस, ये दूसरा चैलेंज था मेरे सामने। मैंने सोच तो लिया था कि मैं सोचूंगा। दूसरा चैलेंज ऐसा था कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। आई आस्क्ड माय वाइफ ओके that if we go there, then we have to live in a combined family. Are you ready to live in combined family? राइट And my children were small. अभी children आज दिल्ली में एजुकेशन वो दे रहे हैं, and I am going to a very smaller place. तो उनका एजुकेशन, ये दो फैक्टर मेरे सामने और बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके That time of course my wife supported me. She has encouraged me that let us go to, we can stay with the family, and if we can do the business, our growth will be there. तो कौन सी ईयर में आपने बिजनेस स्टार्ट किया एंड हाउ ओल्ड यू वेर दैट टाइम? See, I left company in 1983. 1983 means I must be around 45. Okay, you started your company at the age of 45. हाँ. That means कि viewers and subscribers. आज अभी देखिए, I have completed my job. 15 years I have done the service. 42 years. Okay. अभी I am 82. You can reduce 42 years. Starting my Right. business. So viewer and subscribe, that means कि 45 के एज में भी आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सक्सेसफुल भी हो सकते हैं. हमारे जो माइंडसेट है कि हम एक एज के बाद कुछ नहीं कर सकते, तो आफ्टर सर्टेन एज हम कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते, हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. हमारे सामने श्री मल जी बैठे हैं, ही इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल एंड ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन ऑल टुगेदर. तो प्लीज आप लोग अगर कोई भी सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की कुछ शुरू करना है, एंड नो मैटर व्हाट इज द एज यू आर, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए एंड हु नोज कि आप सक्सेसफुल बन जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मल कंस्ट्रक्शन आपने जीरो से शुरू किया था, तो कैसे ये जर्नी कैसा शुरू रहा? ये एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, 83 मैंने जब जॉब छोड़ के वहाँ चला गया, ओके परली वैजनाथ में, टू स्टार्ट माय बिजनेस. तो मेरे सामने बहुत बड़ा एक ये था कि हाउ टू डेवलप ए सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिकॉज आई एम मैकेनिकल मैन, एंड हाउ टू यानी कंपनी को कैसे क्रिएट करना. बिकॉज बाकी हमारे यहाँ जितने थे कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं थे, सब यानी बीकॉम वगैरह ये रेंज के सब पढ़े लिखे थे. देयर वाज ए माय ब्रदर एंड माय नेफ्यूज वेर देयर. So, and luckily we got a job. When I reached in Parli Vaijnath, there was already one tender my brother had given. वो उनको मिल गया था, तो वो काम मेरे लिए शुरू हो गया. मैं तो जैसे ही वहाँ गया दिवाली के बाद में जॉब पे जाना शुरू कर दिया. तो धीरे धीरे मैंने लर्न कर लिया सिविल का. फिर देन आई वर हैविंग सम कॉन्टैक्ट्स. मैं पूना वगैरह जाता था, तो पूना में फिर मैंने 2-4 इंजीनियर्स लोगों को टैप किया, उनको लाया मैंने यहाँ पे यानी परली वैजनाथ में, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की. हमको जो उनके वेल विशर्स थे हमारे ब्रदर के, MSCB में हमने काम चालू किया था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में. तो दे हैव आल्सो इनकरेज्ड अस, एंड विद इन आई टेल यू विद इन ए ईयर और सो, एक साल में हमने 2-3 काम कैप्चर किए. एंड बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ था, मनी वॉज देयर विद माई ब्रदर, तो मुझे ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं थी उसके अंदर. तो द जॉब एग्जीक्यूशन भी हमारा शुरू हो गया. 3 साल तक हमने वहाँ पे अच्छा सिविल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था विद इन 3 years. 86 में मुझे क्या हुआ, नागपुर में एक DK नोग्रेन कंपनी थी, जो जिस कंपनी जियो मिलर में मैं जॉब करता था उसके सिविल वर्क किया करते थे. And we were having a very good relation. So we met in Pune. And Pune में बैठे तो बोले भाई I am getting old, so I am thinking to close my organization because I don't have son, I have daughters. तो मैंने उनको बोला नौगरे साहब आपका इतना रेपुटेशन है, इतना आपका कंपनी अच्छा है, आप इसको कैसे बंद मत करिए आप. Then he has given a proposal. बोले आप आते हैं मेरे साथ ज्वाइन करते हैं क्या, आपको मल ग्रुप हमारे साथ ज्वाइन कर लो, 49% आपका 51% मेरा. बिकॉज
दे वर डीलिंग इन द सेम लाइन जो मैं कंपनी में वहाँ काम करता था, तो माई इंटरेस्ट वॉज देयर इन एनवायरमेंटल साइड. सो आई टोल्ड माई ब्रदर कि ऐसा ऐसा प्रपोजल है एंड आई एम inclined for that. So he has also given a consent कि ठीक है. Of course he felt कि भाई तू आया अभी 3 साल ज्वाइन किए, अपने को जा रहा है, पर by that time we were having 3-4 engineers and all these things. तो कंपनी सेट थी. तो मैं नागपुर आ गया 86 में and I joined as a partner of DK Nowgren company and we worked for 6 years together. Meanwhile what has happened, सिंपलेक्स कंक्रीट फाइल्स में मिस्टर विजय कुमार दमानी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मेरे मतलब फर्स्ट कज़िन का लड़का था. तो बॉम्बे जब भी मैं जाता था उनके पास रहता था. हमारे अच्छे दोस्त, मतलब सिंपलेक्स और जियो मिलर बोथ वर सिस्टर कंसर्न. सो वी आर नोइंग ईच अदर. एंड दूसरे तीसरे जो पार्टनर विनय कुमार जैन एंड विजय कुमार दमानी, दे वर नोइंग ईच अदर and working in the same company. They decided to leave the job. Vijay Kumar Damani decided to leave the job and he wanted some civil engineer. So he discussed with the Vinay Kumar Jain. He also taken a stand कि चलो अपन कंपनी शुरू करते हैं. हाँ, स्टार्ट करते हैं. ऐसे करके वो दोनों बाहर आ गए. अच्छा. एंड दे बाहर आ गए, पर अब उनको सपोर्ट तो उन्होंने ही कॉन्टेक्ट माई ब्रदर. हमारी जो कंपनी थी मल एंटरप्राइजेस उस टाइम, उनका उन्होंने हेल्प मांगा. एंड मल एंटरप्राइजेस उस टाइम तक गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हो गए थे. तो उनके क्रेडेंशियल से दे गॉट वन जॉब इन खाबरखेड़ा. सो दे केम इन नागपुर. आई वॉज ऑलरेडी इन नागपुर. वी वर इन टच. तो हम लोग एक बार बैठे तो हमने कहा यार नागपुर में तो इतना इंडस्ट्रियल स्कोप है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट समथिंग. ऐसा करके हमारा तीनों का ऐसी बात पे कप ऑफ टी पे हमारा बात हो गया. तो बोले ठीक है. फिर नवग्रह साहब को हमने बोला कि ऐसा ऐसा है, अपन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर लेते हैं. तो नवग्रह बोले नहीं, आई वांट टू, अभी मैं इतना उठ गया, आई डोंट वांट टू गो दैट. Then I separated from DK Nowgren company and Vinay Kumar Jain and Vijay Kumar Damani, we three joined together. And 91 में हमारी सब चर्चा हुई. 92 we started as a मल एंटरप्राइजेस, जो हमारे ब्रदर की कंपनी थी, उसके नाम से हमने मल एंटरप्राइजेस नागपुर में चालू किया. That was in 92. And one more important thing I want to tell, that we were not having any backing, financial backing. We were not having much of money to start the company. It was a really whatever the gratuity money we were having, plus some support from Mall Enterprises, my brother. Yani by way of bank guarantee and all these things. So that way, with a very very meager capital, we started the Mall कंस्ट्रक्शन कंपनी चालू किया था हमने. ओके. सो मल कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था? मल कंस्ट्रक्शन का एंड ऐसा था कि दैट टाइम वाज अ वेरी टफ टू गेट द जॉब. बट एक था कि हमारे क्रेडेंशियल्स, यानी उनके क्रेडेंशियल्स सिंप्लेक्स से बने हुए थे, मेरे क्रेडेंशियल्स डीके नोगरे के साथ में रहने से और मल एंटरप्राइज मेरे ब्रदर की कंपनी से क्रेडेंशियल्स बने हुए थे. With those credentials, we have approached to clients. And हमको एक दो काम मिल गए थे. हमको सबसे बड़ा ब्रेक मिला रेमंड में. और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. रेमंड में हम लोग वी हैव गॉन देयर, इस्टेब्लिश, हमने अपना क्रेडेंशियल्स बताया, सब कुछ बताया. तो बोले ठीक है, कोई जॉब आएगा तो आपको बुलाएंगे. तो उनके पास में उनका एक चेयरमैन का टॉयलेट था. वो चेयरमैन वॉज नॉट हैप्पी विद दैट टॉयलेट. तो हमको बुलाया, यार हमारे चेयरमैन इज़ नॉट हैप्पी विद द टॉयलेट, ये इसको कुछ करके दो आप. तो हमने बोला ठीक है, कर देता है. आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? चेयरमैन साहब की ऐसी रिक्वायरमेंट है. अभी देखो हम लोग इतने सब बड़े बड़े काम किए हुए, यानी बिगर पोजीशंस में हमने काम किए थे. तो उस टाइम पे फिर हमने क्या किया, एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया.
और वो आर्किटेक्ट को लेके वो टॉयलेट का अच्छा बना के हमने विदिन 4 मंथ्स वो टॉयलेट एक बना दिया वहाँ पे। और विथ आवर फॉर्च्यून उनके जो चेयरमैन थे विजयपत जी सिंघानिया रेमंड की, उनका भी आना हो गया 4-5 महीने के बाद में। तो ही लाइक द टॉयलेट वेरी मच। उन्होंने बोला बहुत अच्छा टॉयलेट बनाया है। तो क्या हो गया हमारा वो बाद में जो वहाँ के ये थे, ही वॉज वेरी हैप्पी, यार आपने बहुत अच्छा कर लिया। देन इमीडिएटली वन वेरी टफ जॉब हैज़ कम। उनको एक ये रेमंड अपन जैसे छिंदवाड़ा जाते हैं तो लोधी खेड़ा करके जगह थी, वहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी और उनकी कॉलोनी बनी हुई थी। उसमें उनको एक कंट्री क्लब हाउस बनाना था। कंट्री क्लब हाउस है, उनको डिज़ाइन ऐसा था, कोई बॉम्बे के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने हर चीज़ लकड़ी की बनाई थी। यानी ऐसा यू शेप कंट्री क्लब था, उसके ट्रसेस लकड़ी के थे और जितना भी उन्हें सब कुछ है लकड़ी से ढक जाता था। अब हमने कभी लकड़ी के ट्रस नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए। दैट वाज द टफेस्ट। हमने एक्सेप्टेड, ठीक है साहब आपका ये काम कर देंगे, 12 महीने में करना है, ठीक है कोशिश कर लेंगे। देन आवर वीके जैन इज सिविल इंजीनियर, मिस्टर दमानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं मैकेनिकल इंजीनियर। ये कॉम्बिनेशन हमारा। तो हमने क्या किया, हमने नागपुर में एक अच्छे आर्किटेक्ट हु वाज वेल नोन अबाउट दिस वुड वर्क, उसको एंगेज किया और उसके हेल्प से हमने वो काम, इतना मेहनत करना पड़ा, लकड़ी लाओ, वो पर्टिकुलर लाओ, उसको ट्रस बनाओ, उसको बोल्ड करो, उसको अप्रूव करो। एंड उसमें स्विमिंग पूल था, फिल्ट्रेशन प्लांट था और काफ़ी कंट्री क्लब का कंसेप्ट था। फिर वो काम हमने 12 महीने में कंप्लीट, टफेस्ट जॉब था, दैट वाज द टफेस्ट जॉब, वी हैव कंप्लीटेड दैट। एंड वहाँ से फिर हमारी रेमंड की जर्नी चालू हो गई, विच वॉज ए ब्रेक फॉर मल कंस्ट्रक्शन। बाकी फिर क्या हुआ कि उस टाइम बूटी बोरी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हो रही थी। सो मल कंस्ट्रक्शन इज अ पार्टनरशिप कंपनी। सो आप जो पार्टनर्स आपके साथ जुड़े हैं, तो आपने क्या क्वालिटी देखा उनमें? क्वालिटी ऐसा था कि फर्स्ट तो जैसे मिस्टर वीके जैन, ही सर्व्ड 15 ईयर्स, सिविल इंजीनियर थे। 15 साल उन्होंने सिम्प्लेक्स में काम किया, बहुत उनको एक्सपीरियंस था काम करने का। तो सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए वो तो ही वॉज हमारे पिलर, मेन पिलर थे। दूसरे वीके दमानी जो थे वो उनको ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो, पर उनका दूसरा जो साइड था वो इंजीनियरिंग साइड था। वो इंजीनियरिंग इतना उनके पास में नॉलेज था, उनका नॉलेज था इंजीनियरिंग में। और तीसरा मेरा जो रोल था कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो मुझे क्या था कि आई वर्कड इन जियो मिलर, तो मैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे टेंडर हम देते थे। टेंडर मिलाने के लिए हमको बड़े बड़े ऑफिसर लोगों से मिलना पड़ता था, पीआरओ करना पड़ता था और वो काम लेना पड़ता था। तो वो मेरे उसमें एक्सपर्टाइज थी कि हाउ टू गेट द जॉब, आदमी को कैसे पटाना और उससे काम करके हमारे टेंडर कैसे मिलाना, इसमें मेरी एक्सपर्टाइज थी। तो ये 3 लोग हम मिलके वी स्टार्टेड। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब बहुत मुश्किल रहता है कि इतने लंबे टाइम तक पार्टनरशिप रख के कोई काम करे। कभी प्रॉब्लम नहीं आया, कभी क्लैशेस नहीं हुए आपके बीच? हुई। ओके। क्लैशेस भी होती थी, क्योंकि क्या था, कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं काम करने में। एग्जीक्यूशन ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, या कभी कभी ये काम को लेना है। हाँ, कभी हम लोग गवर्नमेंट में 1-2 प्रोजेक्ट किए थे, वहाँ पे हमको किसी ने बहुत तकलीफ दिया। तो मैंने सजेस्ट किया कि वो अजीत जोगी जो चीफ मिनिस्टर थे, वो मेरे दोस्त थे, मतलब मेरे साथ पढ़े हुए थे। मैंने कहा ये ऑफिसर को अपन हटा देते हैं यहाँ से। अदर पार्टनर से नथिंग डूइंग, ऐसा अपने को पॉलिटिकल में जाना ही नहीं है, चाहे दोस्त कितना भी होते रहो। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, तीनों बैठते थे, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड वी यूज्ड टू डिस्कस ओपन माइंडेड, ओपन माइंड से डिस्कस करते थे एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। तो वो हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा कि उसमें ऐसा नहीं रहा कि आई एम रिजिड और वो कोई रिजिड नहीं रहा।
अच्छा, पहले तो है भाई क्यों कन्फ्यूजन हुआ आपके दिमाग में, उसको क्लियर करना। जहाँ से जो कन्फ्यूजन है क्लियर किया, देन वी हैव मेड सर्टन स्ट्रैटेजीज आल्सो, कि जैसे अभी हमारे पास समझो 6 काम हैं, तो हम 3 पार्टनर 2-2 काम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये 2 काम जो पार्टनर देख रहा है, वो काम में अगर कोई मैं जाके समझो मेरा विनय जैन ने काम देख रहा है, इफ़ आई गो देयर and I start giving instruction to down the yes. तो that creates the confusion. Yes. जैन साहब का इंस्ट्रक्शन मेरा इंस्ट्रक्शन अलग होता। तो हम डिसाइडेड कि अगर मैं गया, मुझे कुछ लगा कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो आई विल टेल टू माई पार्टनर हु इज़ लुकिंग आफ्टर दैट जॉब कि भाई ऐसा ऐसा इसमें होना चाहिए, यू टेक डिसीजन। सो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी फिक्स्ड, तो कॉन्फ्लिक्ट फिर बाद में नहीं हुए। और सबसे बड़ी चीज़ फाइनेंशियल, हमारे माइंड सबके फाइनेंशियल इतने क्लियर थे कि वीके दमानी यूज टू डू लुक आफ्टर द फाइनेंस। तो हमको किसी को डाउट नहीं होता था कि अरे इसने कोई गड़बड़ किया क्या, इसने कोई गड़बड़ किया क्या। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपके साथ आपके नेक्स्ट जनरेशन भी ज्वाइन किया है, अजय मल सर, प्रियंक जैन सर एंड आपका ग्रैंडसन उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो इनके साथ काम करने में आपको ओपिनियन के क्लैशेस नहीं हुए क्या? आई थी। अच्छा। जैसे 2011 में अजय जब ज्वाइन किया, एक्चुअल अजय पहले हमारे यहाँ जॉब में था। अच्छा। वो हमने डिसाइड किया था कि हम 3 पार्टनर रहेंगे। तो अजय जब सिविल इंजीनियर हो गया था तो उसको हमने जॉब में किया, हमने पार्टनर नहीं बनाया उसको। ओके। फिर बाद में उसके एक इंडिपेंडेंट कंपनी हमने खड़ी कर दी, जो कि हमारे से सबऑर्डिनेट कंपनी, छोटे छोटे काम वो करते थे जो हम नहीं करते थे, ऐसे लाइक दैट। बट ही आल्सो, उसने वो कंपनी को काफ़ी बढ़ाया। फिर बाद में हमको लगने लगा कि भाई अभी हमारी एज हो रही है, तो व्हाई नॉट टू टेक, मिस्टर दमानी यूज्ड टू टेक डिसीजंस, ये सब डिसीजन दमानी ये लेते थे। उसका बहुत क्लियर माइंड था। तो बोले अभी ऐसा करो, अजय को बुलाओ। द प्रियंक जैन जो जैन साहब का लड़का था वो यूएस में था। अच्छा। यानी इसने यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग किया, यूएस में मास्टर किया, एंड देन ही वाज डूइंग ए जॉब देयर। तो उसको बोला गया कि भाई देखिए अपनी कंपनी है, आप आके देख लो, यहाँ पे ज्वाइन करो। तो वॉट एवर ही हैज़ आल्सो सीन द प्रो कॉन्स, वो भी आ गए। अब ये लोग 2011 के करीब 15 साल हो गए उनको आने को। पर जब वो आए तो उनका ऐसा कहना था कि हम लोग जब काम करते थे तो वी वेर वेरी मच सेटिस्फाइड वे में काम करते थे। हमने देखा कि हमको टर्नओवर बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, हमको प्रॉफिट कमाना है। मुझे अगर 25 करोड़ का टर्नओवर कर लूँ और उसमें मुझे प्रॉफिट 50 करोड़ के टर्नओवर का मिल जाता है, तो आई विल नॉट गो फॉर 50 करोड़ टर्नओवर। दैट वाज अवर फिलोसफी दैट टाइम। जब ये लोग आए तो ये बोले नहीं, अपने को टर्नओवर बढ़ाना चाहिए, अपने को गवर्नमेंट के काम लेना चाहिए, अपने को ये करना चाहिए। देन मिस्टर दमानी ने हम लोग बोला ठीक है, ओके, बट हमारी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस है, वी हैव टू वर्क इन दैट सोर्स। हम मार्केट में जाके पैसा लोन पे लेंगे नहीं। वॉट एवर द बैंक हैज़ गिवन क्रेडिट, बैंक की जो फैसिलिटीज़ है, हमारी जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस में अपने को काम करना है। तो उन्होंने 2-3 साल 4 साल पर कोशिश किया, बहुत कुछ कोशिश करने के बाद में उनको भी लगा कि जो प्रिंसिपल हम सेट किए हैं वो प्रिंसिपल ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो धीरे धीरे फिर वो दे हैव कम टू दिस, यानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम लिए, पर्टिकुलरली अजय का काफ़ी मैंने जो उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वो जॉब लेने के पीछे लग जाता था, तो वो जॉब होना ही, तो उसका भाई प्लस माइनस तो देख लो पहले। हम लोग ये देखा करते जॉब लेने के बाद हमको क्या रहे, कैसा रहेगा। फिर उनको लेने दिए, वो जॉब लेने दिया उनको। ऐसे 4-5 जॉब एग्जीक्यूशन करने के बाद में दे हैव कम टू द सेम कि वॉट एवर दी प्रिंसिपल्स वी हैव सेट एंड वॉट एवर दी, जैसे हमारा बहुत बड़ा था कि भाई हम क्लाइंट, हमने हमारा क्वालिटी काम करना गिवन टाइम में, क्लाइंट शुड नॉट बी अनहैप्पी। हमारे क्लाइंट ने देवता है, उसको हमको अगर ठीक रखो तो हमको काम मिलते जाएंगे क्वालिटी। अगर आप लो काम
और फिर आप काम नहीं करेंगे टाइम से। अब जैसे हमने बहुत से हमारे क्लाइंट ऐसे हैं रिपीटेड ऑर्डर्स में, उनकी जैसे मशीन आती थी तब तक हमको फ्लोर बना के देना पड़ता था। अच्छा। तो मशीन आके फ्लोर पर रख जाए। अगर हम फ्लोर नहीं बनाए तो उनकी मशीन गोडाउन में रहेगी। तो ये जो चैलेंजेस थे, ये चैलेंजेस को उन लोगों ने उनको कहा कि आपको करना है। व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग दैट देन दे रियलाइज कि जो हम लोगों ने प्रिंसिपल सेट किए थे वो प्रिंसिपल में काम करना चाहिए। फिर हमने उनके भी जो दे वर आल्सो हैविंग आइडियाज़, उनके आइडियाज़ हमने अडॉप्ट किया, हमारी आइडियाज़ उन्होंने अडॉप्ट किया, और लाइक दैट नाउ दे आर दी मेन पिलर्स। अभी आज के दिन में दे आर दी मेन पिलर्स, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वेरी गुड जॉब्स। पर जैसे अब यंग जनरेशन के लिए, जैसे मेरा अभी ग्रैंडसन आया है, माई थर्ड जनरेशन इज देयर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू यू? See, leadership is basically आप कंपनी को जो प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी यू हैव टू सी, देखिए वन इज ए क्लाइंट, हमने काम लिया है, वो काम को पूरा करके देना है टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लाइंट। हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं अल्टीमेटली दे आर वर्किंग फॉर अस। उनसे काम लेना एंड उनको सेटिस्फाई रखना सो दैट दे शुड वर्क। तो लीडरशिप में हमने क्या है कि फैमिली टाइप ऑफ अप्रोच कर दिया कंपनी का। कि अगर लीडरशिप में हमारे लेबर हो गया, हमारे वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, सब कुछ हो गए, वो इस कंपनी का इम्पोर्टेंस समझ के दे यूज टू हेल्प अस। यानी वो हमारे सबऑर्डिनेट, जैसे आज लेबर भी काम करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट वेंडर काम करते हैं, तो उसे भी मालिक, उनका लीडरशिप बहुत अच्छा है, पेमेंट बहुत अच्छा है, वो सब हमारी बात सुनते हैं, हमारी सब प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी कि यू हैव टू क्लब एवरीथिंग, कि हर एक एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट टू हैव ए सक्सेस, टू गिव ए रिजल्ट, एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट। Labor is important, the supplier is important, other people are also important, and then you have to give result to the client. The client must be happy. That is the main object. ये leadership का हमारे कंपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में होना चाहिए, और वो हमने किया। Okay. So what is your biggest project as Mal Construction? बिगेस्ट प्रोजेक्ट अभी हमने लास्ट 5 years में हमने मेट्रो स्टेशंस के काम किए। मेट्रो स्टेशंस का एक काम करीब 100 करोड़ का, एक 2-4 काम लगे, 100 करोड़ का एक हमारा अभी प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गया है। हमारा सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट वही है। नहीं तो नॉर्मली हम जो इंडस्ट्री में काम करते थे वो 25 करोड़ 30 करोड़, ज़्यादा 40 करोड़, या स्कूल्स वगैरह के जैसे एजुकेशन लाइन में भी काम करते थे। भारतीय विद्या भवन स्कूल के बहुत सारे काम किए हमने, उनमें ज़्यादा वैल्यू नहीं बनती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर काम में वैल्यू बनती है। पहले हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं गए, वी कंटेंटेड आवर सेल्फ विद द इंडस्ट्रियल साइड। तो इंडस्ट्रियल बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत उस टाइम नहीं आते थे, नागपुर में नहीं आते थे, तो हमको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अभी हमारा सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट अभी 100 करोड़ का हो गया है। अभी हम लोग 200 करोड़ का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिंगल प्रोजेक्ट। वो अगर वो हो जाएगा 2 साल, एक साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाता तो हमारी क्रेडेंशियल 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट की हो जाए। अभी एक प्रोजेक्ट हम लोग और कर रहे हैं, वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है रायपुर में। अच्छा। तो अभी क्रेडेंशियल बढ़ रही है, मतलब विद इन 3 years इट विल बी लाइक 500 CR। या ओके। सो 0 से 165 CR अप्रॉक्स, ये जो जर्नी रहा, डिड यू सी एनी फेलियर्स? इसमें वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग फेलियर्स बहुत ऐसा हमको कहीं आया नहीं, फेलियर्स आया नहीं। सबसे बड़ी चीज़ क्या बताता हूँ मैं आपको, हमने हमारी कंपनी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिस्टर विजय दमानी ने इतना प्रिसाइज रखा था कि हमको हमारे फाइनेंशियल लिमिट में काम करना है, उससे ज़्यादा हमको काम करना नहीं है। होता क्या है नॉर्मली हमारे सर की कंपनी, वो अभी हम लोग हमारे फाइनेंशियल के हिसाब से हम अभी 165 करोड़ का काम कर रहे हैं।
हो सकता है हमारे बैंक से और हमको रिसोर्सेज मिल जाए, हम 2-4-5 साल में 500 करोड़ का काम कर देंगे। बट सपोज इफ आई टेक ए जॉब ऑफ 2000 करोड़ और मोर देन दैट, फॉर विच आई हैव टू गो फॉर द मार्केट, मार्केट में जाना पड़ेगा, बैंकों में जाना पड़ेगा, इधर से उधर करना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहती है, तो आपका एग्जीक्यूशन जो जॉब करने का है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमने वो लाइन को नहीं छोड़ा, हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रह के ये सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, अपने को काम करके देना है, वो माइंड ऑफ सेट रखा। ओके, सो बेसिकली डिसिप्लिन इज द की फॉर योर सक्सेसफुल बिजनेस। तो मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है अभी तक के, तो सबसे यही सुना कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, स्मॉल, मीडियम और बिग, डिसिप्लिन एंड प्रोटोकॉल बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी बिजनेस आप करने जाओ, कोई भी आप काम करो। मैंने जैसे हमने कुछ प्रिंसिपल सेट किए थे, आपको बताऊं जी, ये काम शुरू करने के पहले, कि हमको एथिक्स, ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसके जो भी एथिक्स है वो एथिक्स में काम करना है। ओके, सेकंड, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद में ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ों को हमने रखना चाहिए। देन वेलफेयर ऑफ दी, हमारी जो स्टाफ है, लेबर है, उनका वेलफेयर। देन रिलेशन बिटवीन वेंडर्स एंड सप्लायर्स, वो बड़ा कॉर्डियल होना चाहिए हमको। ये सारी चीज़ों को, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने अगर क्लाइंट को बोला है कि ये काम मैं आपको 12 महीने में कर दूंगा, तो 12 महीने होना चाहिए, तो 13 महीने होना चाहिए, वो 18 महीने नहीं होना चाहिए। वी हैव ऑलवेज केप्ट दैट एंड विद द क्वालिटी। क्वालिटी सेक्रीफाइस में आपको बताऊं, कहीं कहीं ऐसे भी हुआ है कि कुछ स्पेसिफिकेशन, एक काम किया हमने, उसमें कोटा लगाना था। कोटा में क्या होता है, आपने कोटा देखा हो, कोटा जो फ्लोरिंग में लगती है, तो उसको उनका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कोटा लगा देने का और एक सादी पॉलिश कर देने का था। जब बन गई बिल्डिंग, इतनी सुंदर बिल्डिंग बन गई और कोटा इतना गंदा दिख रहा था, तो हमने अपने पैसे से, यानी विदाउट क्लाइंट को इतना बोला कि सर हम इसको मिरर पॉलिश करेंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे। ओके, यानी वो स्पेसिफिकेशन मेंटेन करने के लिए हमने मिरर पॉलिश की, उसका खर्चा हमने बियर किया, बट टू लुक वो प्रॉपर्टी अच्छी दिखे, इसके लिए भी यानी एक क्या है, आपको कभी कभी आपको टेक्निकल साइड से सोचना चाहिए। हम अब कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है, टेक्निकल इश्यूज़ को हमने कभी भी यानी जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड मेंटेन करके करना चाहिए, सेक्रीफाई उसमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जो कि हमारे गवर्नमेंट जॉब में ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। so these are the biggest key role in every business, so we have to follow this actually rules कि आगे चल के हम अच्छा काम कर पाए। सो आपके हिसाब से आपने मुझे कहा था कि एम्प्लॉयज के साथ आप लोगों का हेल्दी रिलेशनशिप है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट? देखिए ऐसा है कि जब स्टाफ काम करता है, हाँ, तो एक्चुअल तो काम वही लोग करते हैं। बिल्कुल, तो कभी कभी उनके दिमाग में आ जाता है कि भाई काम तो हम कर रहे हैं, तो हमको तो पैसा मिल नहीं रहा है, वो कम पैसा मिल रहा है और कंपनी ये कर रही है। तो हमने पहले से, सिंस हमने भी नौकरी की थी, ऑल थ्री वेयर इन, दे वेर एम्प्लॉयड नॉट एम्प्लॉयर, तो हमको मालूम था कि जो नौकरी पेशे के आदमी हैं उनकी क्या फीलिंग्स होती है। वी हैव केप्ट दैट इन माइंड। तो कुछ आपको बताता हूँ कि हमने जैसे शुरू करने के 5-6 साल के बाद में हमारा कंपनी सेट हो गई, पर्टिकुलरली रेमंड। जब रेमंड में हमारे काम करने चाहिए, मगर अच्छा प्रॉफिट हमको आ रहा था, वी डिसाइडेड कि विल शेयर द प्रॉफिट। हमने अपने बंगले नहीं बनाए, गाड़ियाँ नहीं ली, या वी आर नॉट गॉन इन लग्जरी लाइफ, वी हैव रिमेन्ड जैसे हम लोग थे वैसे ही रहे। और एक टाइम में हमने 6-6 महीने की सैलरी एज ए एस्क्रेसिया करके दिया फॉर 3-4 ईयर्स। वो प्रॉफिट आ रहा था, हम बांट रहे थे। फिर क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। अब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो जो स्टाफ है, स्टाफ का वैल्यू डेफिनेटली बढ़ गया, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर वॉज देयर।
तो जिस आदमी को मैं 50,000 दे रहा हूँ उसको 2 लाख रुपया देने के लिए कंपनी तैयार है, जिसको मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ 50,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तो पीपल वेयर हमारे पास अप्रोच किए बहुत। तो उस टाइम हमने बोला भाई आपको कंपेयर किया कि आपको कॉस्ट टू मी आप क्या पढ़ रहे हैं, हम आपको 6 महीने की एक्सक्रेसिया दे रहे हैं, वो भी हमने जोड़ा। तो बहुत से लोगों ने बोला सर ये तो आप दे रहे हैं, आपके मर्जी से दे रहे हैं, यानी ये इसमें कैसे जोड़ते हैं आप। अरे हमने बोला ये गलत थिंकिंग हो रही है स्टाफ की, हमने हटा दिया वो। फिर हमने क्या इंक्रीमेंट करेंगे अब दूसरा ऐसा है कि इंक्रीमेंट भी हम लोग फिर नेचुरली वो पार्ट जो था वो इंक्रीमेंट में लिया है, इंक्रीमेंट अच्छा करते थे। अब होता क्या इसमें स्टाफ की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कभी कभी हो जाती है, तो हमने और मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है, हमने कंपनी में मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस और ग्रेचुटी। अब जो स्टाफ ऑलरेडी मैंने उन्होंने जॉब कर लिया, मेरे पास में जो स्टाफ है, एक चीज़ मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ कि उनको रिटेंशन एवरी ईयर 95% के अबव है। 95% स्टाफ मेरा रहता है मेरे पास में, जाता नहीं है एवरीवेयर। दैट इज़ वेरी आई इट्स प्राउड टू टेल यू दैट हमारा स्टाफ के साथ जो रिलेशन है इट्स ए फैमिली टाइप रिलेशन है। तो वी टेक केयर। अभी कभी कभी क्या है, अब जैसे हमने एक किया कि जिसकी सैलरी 40,000 के नीचे है और उनके बच्चे आफ्टर 10th आफ्टर 11th इफ दे आर ब्राइट बट दे डोंट हैव, उनके पास पैसा नहीं आगे पढ़ने के लिए, कंपनी ने फ्री एजुकेशन देने का डिसीजन लिया कि उनको हम फ्री पढ़ाएंगे। समझो किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को और कुछ करना है, डॉक्टर करना है, तो कंपनी फ्री देगी। तो ऐसे भी हमने कुछ हमारे हुए। देन सबसे बड़ी चीज़ मतलब कंपनी को आज 35 साल से ज़्यादा हो गए, बट मुझे एक भी दिन याद नहीं आ रहा है कि मैंने सैलरी मंथ एंड में 30 या 31 तारीख को नहीं की। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत बार फ्लक्चुएशंस रहते हैं, होता ही नहीं, सैलरी नहीं होती है। तो पीपल आर हैप्पी इन दैट कि हमारी सैलरी हो जाती है 30 तारीख को। बहुत से हमारे शहर की कंपनियों के अंदर सैलरी 2 महीने 3 महीने के बाद होती है। तो एक वो भी हमने ये डिसाइड किया कि अगर हमारे पास पैसा है तो पहले लेबर को पेमेंट होगा, स्टाफ को पेमेंट होगा, फिर सप्लायर को होगा, और फिर यानी कोई जो बड़े वेंडर्स होंगे, बड़े सप्लायर हैं, उनको होगा, और फिर बचेगा तो हमारे पास आएगा। दैट प्रायोरिटी वे ओके। तो स्टाफ के वेलफेयर के अंदर अभी स्टाफ इज़ हैप्पी। किसी का मेडिकल हो जाता है, अभी कुछ स्टाफ ऐसा है कि कुछ ऐसी बीमारी लग गई जिसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, दे कांट डू, बट वो हमारे साथ में 15 साल 16 साल से काम किया है। कैंसर हो गया हमारे सीनियर इंजीनियर को, वी हैव टेकन ए कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर देम, पूरा ट्रीटमेंट किया। और जो कुछ ऐसा भी स्टाफ है कि काफ़ी अच्छा काम करता है, इंक्रीमेंट तो सबको सरीका हो जाता है। ऐसे लोगों को फिर हम लोग अलग अलग तरीके से उनको बेनिफिट देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपसे मैंने पूछा था कि व्हाट इज द लीडरशिप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। सो दिस इज द लीडरशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, कि एक लीडर होने के साथ साथ सबको लेके जो इंसान चलते हैं, सबको बेनिफिट देते हैं, तो दैट इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। सर, यहाँ से आप आफ्टर 10 years मल कंस्ट्रक्शन को कहाँ देख रहे हैं? अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके अंदर ये यंग टीम आ गई। बिल्कुल। अभी मैं तो 80 क्रॉस कर गया। आई एम जस्ट स्पेंडिंग माई टाइम लिटरली, आई एम नॉट यूजफुल टू कंपनी मच। जैसे हमारे जैन साहब है पार्टनर, वो समझो हमसे 70 साल के हो गए। बाकी ये तो यंग लड़के हैं या यंग ग्रुप जो है, प्लस हमारे जो स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ, एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग स्टाफ है, दे आर वेरी मच एनर्जेटिक और वो काफ़ी काम करना चाहते हैं। अब हम लोग क्या करना है, हमको फाइनेंशियल 1-2 चीज़ करना है हमको। एक तो हमारी क्रेडेंशियल बढ़ानी है सो दैट वी कैन कोट
for those jobs, or otherwise you go for joint venture to take a bigger job. Right. मैं ऐसा सोचता हूँ कि 10 साल के अंदर, 4-5 साल के अंदर ही हमारी कंपनी 500 करोड़ प्लस 500 करोड़ को पहुँचना चाहिए, ये करना चाहिए। ओके। एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं जो मार्केट में देख रहा हूँ हमारी सर की कंपनियों का, कि वो काम लेते जा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट बिकॉज ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंस प्रॉब्लम में आ गए। फिर यानी इधर उधर से करके, तो वो हमने डिसाइड किया ऐसा हमको काम करना नहीं है। तो वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट लाइन कि हमारी कंपनी के पास इतना टैलेंट है, मैं आज 2500-4000 करोड़ का भी काम लेके कर सकता हूँ, पर मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा। अच्छा। ये 10 साल, ये हमारा 10 साल के अंदर ये रहेगा कि हम अपने विद इन लिमिट में काम करेंगे, तो 500-600 करोड़ का होना चाहिए कंपनी। ओके। सो आउटसाइड ऑफ योर बिजनेस, व्हाट इज योर हॉबी? आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, यस। और अभी पैशन? हाँ, और पैशन? पैशन ऐसा है, मुझे फॉरेन घूमने का काफ़ी शौक है, और दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे हमारी एल्यूमिनी एसोसिएशन, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, ओके। वो यहाँ पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उस पर्टिकुलर पीरियड में कॉलेजेस नहीं तो हमारे विदर्भ से बहुत लोग वहाँ भोपाल पढ़ने गए। राइट। तो करीब 200 स्टूडेंट्स हमारे आजू बाजू विदर्भ में हैं, तो हमने उसका पूरा एसोसिएशन बनाया है। मैं 10 साल तक उसको प्रेसिडेंट रहा उसका। अच्छा। तो आई एम वेरी मच अटैच विद दैट। क्या नाम है एसोसिएशन का? हमारा है मौलाना आज़ाद मैनिट, अभी वो मैनिट हो गया, पहले था MACT मौलाना आज़ाद रीजनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी हो गया मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। ओके। तो उसका वो एल्यूमिनी विदर्भ चैप्टर एल्यूमिनी एसोसिएशन करके बनाया है, तो उसके एक्टिविटीज़ काफ़ी होती रहती है। आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट। उन्हीं के साथ फिर हम फॉरेन टूर कर रहे हैं और घूमने जाते, कहीं ऐसे जाते हैं, तो वो एक मेरा पैशन है कि उनको। दूसरा ऐसे 2-4 नागभूषण अवार्ड फाउंडेशन, एक मारवाड़ी फाउंडेशन, ऐसे 4-5 फाउंडेशन में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। अभी ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ कर लिया, कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है वो भी मैं करना चाहता हूँ। ओके। सो हाउ डू यू स्टे एक्टिव एंड मोटिवेटेड एट द एज ऑफ 81? एक तो क्या है, डिसिप्लिन लाइफ। ओके। आई एम लीडिंग ए डिसिप्लिन लाइफ। देखिए हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन में या हमारे कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आदमी बिगड़ बहुत जल्दी जाते हैं, यानी। और क्या है कि मुझे काम लेना है और मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है। अभी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो PRO करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है। हमने पहले से हमारा प्रिंसिपल ऐसे बना दिया था कि हम लोग क्लाइंट के साथ में बैठ के कभी ड्रिंक नहीं करेंगे, क्लाइंट के साथ में कोई फालतू का एंटरटेन नहीं करेंगे। जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसे वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, और बहुत ही हायर लेवल पे अगर कुछ करना है तो हायर लेवल पे ही हम कुछ यानी उनके साथ बैठेंगे, अदरवाइज़ हम लोग नहीं करेंगे सब। तो ये सब चीज़ों से क्या है, एक लाइफ में बड़ा डिसिप्लिन थी, और अभी मैं और ज़्यादा डिसिप्लिन करना चाहता हूँ। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ आल्सो। मॉर्निंग वॉक करने जाना है, योगा करना, आसन करना, ये सब करना है। पर ऐसा है कि हम लोगों ने इतना काम कर दिया तो घर में नहीं बैठ सकते। आई कांट फील अलोन। तो जब तक ब्रेन है चल सकते हैं। आई कम टू ऑफिस में मैं आई कीप अकाउंट का वॉच रखता हूँ, क्योंकि दमानी साहब देखते थे, वो चले गए, ही एक्सपायर्ड। तो आई एम लुकिंग आफ्टर दैट। फिर मेजर परचेजेस को गाइड करना, प्लस हमारे जो स्ट्रेटजीज बनती है उसमें अपना गाइडेंस देना। साइट पे अभी नहीं जाता मैं। तो आई वांट टू रिमेन बिजी इन दिस। इस जनरेशन में अगर अभी किसी को स्टार्ट करना है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो वो कैसे स्टार्ट करे? ऐसा देखिए, नाउअडेज थिंग्स आर वेरी फास्ट देन अर्लियर व्हाट यूज्ड टू डू। अगर किसी को काम करना है तो फर्स्ट एक फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही शुड वर्क। जितना फाइनेंस उनके पास में है, देन ही हैज़ टू सिलेक्ट कि मुझे किस में जाना है। मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है
या कारपोरेट सेक्टर में जाना है या मुझे गवर्नमेंट में जाना है। मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो पीपल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, बट वो एक अलग, बहुत अलग माइंडसेट चाहिए उसके लिए। यू हैव टू बी वेरी डिफरेंट माइंडसेट का आदमी होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता आपके सामने। जो तो उस टाइप का माइंडसेट जिससे रहा, तो उन्होंने वैसा सिलेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे भी पैसा मिलता है, बट अगेन आई वांट टू टेल दैट दे मस्ट मेंटेन सर्टन प्रिंसिपल्स। जैसे मैंने आपको कहा कि जो काम करना है एथिक्स के साथ काम करना है। हाँ, काम में ऐसा है कि आपको किसी को, क्लाइंट ने आपको काम दिया तो अच्छा काम करके देना। ये आपका यंग जनरेशन का ये होना चाहिए कि यस वी हैव टू डू ए जॉब विद गुड क्वालिटी इन गिवन टाइम, काम करके देना है। उतना ही काम लेना है जितना वो कर सके। एक बिजनेस बनने में, स्टार्ट से लेके बनने में, सक्सीड होने में कितना टाइम लगता है? देखिए हमारे केस में हमने जब ये कंपनी चालू की थी, मैंने आपको बताया कि हमारे पास तो कुछ नहीं था। राइट। हमारे पास था कि हमारा नॉलेज, जो Skills. हमने जॉब किया था, हमारे ग्रेजुएट जो हमें इंजीनियर थे, प्लस हमने जो काम किया उसका जो एक्सपीरियंस था, उससे हम लोगों ने ग्रो किया। तो उसको लेते हुए अगर मैं देखूं तो 5 साल के अंदर हमने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया था। तो मिनिमम 5 years। Okay. So last question, what is your one line mantra for life and business? ऐसा है, यू मस्ट लिव ए डिग्निफाइड एंड डिसिप्लिन लाइफ, दिस मोटो होना चाहिए। एंड बिजनेस में यू मस्ट डू द बिजनेस विद इन आवर, जितने आपके पंख हैं उसके अंदर आपका बिजनेस आपने करना चाहिए। एंड हमने जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया कि वी हैव एंजॉयड द बिजनेस, बिजनेस वॉज नॉट अ बॉदरेशन फॉर अस। तो वन मस्ट वर्क कि बॉदरेशन नहीं हो, घर में जाने के बाद में आराम से लाइफ एंजॉय कराए। ओके, दैट मीन्स कि आराम से काम करो, पीसफुल और सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। एंड फैमिली शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। फैमिली शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि आजकल वर्क लाइफ बैलेंस करके कुछ नहीं होता है। सो कोई काम कर रहा है तो सिर्फ काम ही करते जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव रेड रिसेंटली, आई हैव रेड 4-5 कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड कर लिया। उनका अगर आप पढ़ो पेपर के हिसाब से जो रिपोर्ट आती है कि दे हैव गॉन अगेन मैडनेस, यानी उनकी जो जितने में काम करना चाहिए नहीं, क्या इधर से ये बैंक से पैसा ले लिया, वो बैंक से पैसा ले लिया, और फिर बाद में दे हैव गॉन इन ए, बिकॉज देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन लाइफ, तो फैमिली को अलग भेज दिया। यानी इज वेरी डिफरेंट, एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग शुड नॉट बी देयर। अगर आपको रियल में लाइफ ऐसा होना चाहिए कि लाइफ भी इंजॉय करो, बिजनेस भी इंजॉय करो, एंड रात को आराम से सो। हम इतने ज्यादा आज के डेट में फास्ट एंड अभी सब चीज होना, अभी सक्सेस होना, अभी सब चीज करना है, तो दैट इज नॉट द सिनेरियो। हमको वी हैव टू पेशेंस एंड आराम से काम करेंगे तो इवेंचुअली धीरे धीरे हम सक्सेस की तरफ। इफ यू डोंट हैव एनी बैकिंग, ओके, सपोज इफ जैसे आज मेरी कंपनी है, हाँ, मैं ग्रैंडसन आ गया, राइट, तो उसको तो एक आज प्लेटफॉर्म मिल गया। बिल्कुल। और जिनके पास नहीं होता वो क्या करते हैं? जिनके पास नहीं होता उनको क्रिएट करना पड़ता है, True. उनको प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ एथिक्स और प्रिंसिपल के साथ में वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। बिल्कुल। अदरवाइज दे विल डाइवर्ट एंड दे विल गो इन अ प्रॉब्लम। True. अगेन देयर इज अ लक देन। Yes. तो डू यू बिलीव इन लक? हाँ, लक भी होना चाहिए। So इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी हाउ इज योर लाइफ? आर यू सेटिस्फाइड? आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड बिकॉज लेट मी टेल यू, ये सब बिजनेस करने के बाद में एक चीज़ हमने कमाई है। ओके। पैसा तो जो है कमाया जाता रहता है। आज हमारा रेप्यूटेशन नागपुर में ऐसा है कि अगर कोई काम करके देने वाला होगा, क्वालिटी वर्क टाइम से, एंड
ओबीडियंटली फेथफुली जो काम करके देगा, कीपिंग क्लाइंट्स इंटरेस्ट, तो जो 4-5 प्राइवेट कंपनियों में 4-5 नाम आते हैं नागपुर में, इसमें मल कंस्ट्रक्शन का नाम है। आज जो भी ऑफिसर्स जिनके साथ हमने काम किया है, बहुत तो फ्रेंड्स हो जाते हैं, यानी हमारे उनके रिलेशंस चलते हैं, काम हो नहीं हो बट फ्रेंडशिप इज़ देयर। बहुत से सप्लायर है, इवन हमारे लेबर लोग, हमारे वेंडर्स लोग साहब, दे रिमेंबर अस और इज्जत देते हैं। यानी हमने इज्जत जो कमाई है ना बिजनेस करके, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि हमने लाइफ में जो कमाया है, पैसा तो आएगा जाएगा सब चलेगा, पर ये चीज़ नहीं मिलेगी कभी। और ये मिली है बिकॉज ऑफ वी हैव वर्क विद इन सर्टन प्रिंसिपल्स। हम लोग काम किए उसके साथ में। देखिए, आपको कोई भी चाहेगा कब, जब क्लाइंट चाहेगा उसका काम ठीक